So students, in the last episode we solved up to question number 3 of exercise 2.4 optional, and now the only two questions are left to be solved, question number 4th and question number 5th. So see, question number 4th is here, px is given to be this, and its two zeros are 2 plus root 3 and 2 minus root 3, and two more zeros are required to be find out. So what we will do, depending on the given two zeros, we will try to write an polynomial using the formula x square minus alpha plus beta x plus alpha beta, and by that polynomial we will divide this one to get a quotient, and remainder will be 0, and that quotient will be factorized to get the required zeros. So let's start. If it is alpha, if it is beta, then alpha plus beta will be 4. So zeros are hence polynomial will be equal to x square minus 4x, and if we multiply this, 4 minus 3 equals 1, so here we will get plus 1, and now it is the polynomial which will divide this polynomial to give required quotient. So let's divide that polynomial by this one, x square minus 4x plus 1, and we are going to divide x per 4 minus 6 to the power 3 minus 26x square plus 138x minus 35. So certainly x square should be the main divisor here, x per 4 minus 4x cube plus x square minus plus minus, it will be cancelled, and 4x cube minus 6 minus 2x cube will be here, minus 27x square plus 138x, and now minus 2x should be the next. So let us write here quotient. So it was x square, now minus 2x, so minus 2x cube plus 8x square minus 2x, and it will be cancelled out, minus 35x square, and it will be 140x, minus 35 will come down, minus 35, so definitely minus 35 will be the next part of the quotient here, and to get the required zeros we will factorize this one. 5 7 are 35, 7 versus 5 we are 2, so it will be x minus 5. So what should we do? Plus 5. Okay, exactly. So zeros will be minus 5 and 7. So zeros minus 5 and 7. So this way we come at the conclusion that the remaining zeros will be minus 5 and 7. So this is the process and procedure to get the remaining two zeros, and the next question is 5th one, and in a short while from now. तो 5th क्वेश्चन जो है वो अब हम लोग करेंगे, और वही लास्ट क्वेश्चन होगा. आप यहाँ पर बोर्ड पर देखिए, ये इससे भाग देना है. पॉलिनोमियल इससे कुछ डिफरेंट था, लेकिन वो कह रहा है कि रिमाइंडर बच जाएगा x प्लस a. तो दिए हुए पॉलिनोमियल x पर 4 माइनस 6x क्यूब प्लस 16x स्क्वायर माइनस 25x प्लस 10,
इसमें से हम लोग अगर x प्लस ए माइनस करते हैं तो -25x हो जाएगा, -26x प्लस 10 रहेगा और माइनस ए हो जाएगा। और इसी में हम लोग भाग देंगे इससे, जो आ जाएगा कोटेंट वो यहाँ लिखा हुआ है। और चूंकि हम सभी जानते हैं कि जब हम लोग रिमाइंडर को माइनस कर लेते हैं तो ये इसको मतलब डिवाइजर जो होता है डिविडेंड को एग्जैक्टली डिवाइड कर देता है, यानी रिमाइंडर शुड कम 0। लेकिन भाग जब दिया गया तो रिमाइंडर 0 नहीं आके ये कुछ आया, इसी को हम लोग 0 मान लेंगे। आगे बढ़ेंगे तो ए और के का वैल्यू निकल जाएगा। तो आइए देख लेते हैं कि किस तरह से ये भाग परफॉर्म होगा। तो सबसे पहले हम लोग x प्लस ए को माइनस किए। जब x प्लस ए को माइनस किए तो ये आया x² प्लस 2x माइनस 2x प्लस के, ये तो डिवाइजर है। ये -26x प्लस 10 माइनस ए आया। यहाँ पर 4 था, यहाँ पर स्क्वायर था, इसीलिए x² बार में भाग गया। तो आप x पर 4 माइनस 2x³ प्लस के x² लिखाएगा। ये चिन्ह बदलेंगे तो कट जाएगा। और ये 2 माइनस 6 करने पर -4x³ आया। और यहाँ पर x² को हमने कॉमन रख करके 16 माइनस के लिखा, ऊपर से उतर गया ये तीनों टर्म। -26x प्लस 10 माइनस ए, ये प्लस है, प्लस 10 माइनस ए, सो दिस इज प्लस 10 माइनस ए। और इस बार हम भाग ले जाएंगे -4 बार में, तो यहाँ पर -4 आएगा ना। तो -4 बार में भाग गया तो -4x³ प्लस 8x² लिखा जाए चाहे x² 8 लिखा जाए, एक ही बात हुआ। माइनस हो जाएगा 4kx, क्योंकि हम लोग भाग ले गए हैं 4x बार में, -4x बार में। तो ये कैंसिल हुआ, ये कैंसिल हुआ। तो आपका जब ये कैंसिल हो जाएगा तो कौन सा कैंसिल नहीं होगा, वो ये होगा कि x² ब्रैकेट में 16 माइनस के माइनस 8, यानी 8 माइनस के यहाँ बचेगा जो कि सामने है। और ये तो होल थिंग्स केम डाउन। ये आपका यहाँ पर जो बचा हुआ था x में -26 के साथ साथ +4 के साथ, तो माइनस बाहर करेंगे तो यहाँ पर माइनस हो गया और ये उतर गया। अब इस बार 8 माइनस के बार में भाग हम लोग ले जाएंगे। यहाँ पर ब्रैकेट में है 8 माइनस के से इस पूरे में मल्टीप्लाई करके यहाँ लिखा गया है। ये समाप्त हुआ। माइनस करने पर ये यहाँ पर प्लस है, तो ये 16 माइनस 2k माइनस 26 प्लस 4k, जो कि कितना आएगा, x का यह कोएफिशिएंट बनेगा। आप प्लस ये वाला 10 माइनस ए प्लस 8k प्लस k², यहाँ को ये k² है लास्ट में, यहाँ पर k² है लास्ट में। अब जब हमारा रिमाइंडर ये इतना सारा आ गया तो ये 0 करना हम चाहेंगे, क्योंकि अब हम मान कर चले हैं कि इट हैज़ डिवाइडेड इट एग्जैक्टली। तो ये +0 तभी 0 आएगा जबकि यह भी 0 हो और यह भी 0 हो। अगर यह 0 है, कौन सा, x का जो कोएफिशिएंट है -10 प्लस 2k, तो यहाँ से हम निकालेंगे तो k का वैल्यू आ जाएगा 5। ये हमारे काम का चीज़ है, क्योंकि यहाँ जहाँ जहाँ k है उसमें हम पुट करेंगे। अगली बार इसको भी हम 0 करने वाले हैं। तो 10 माइनस ए माइनस 8k प्लस k² बराबर 0। k की जब आप 5 कीजिएगा तो ये आएगा 10 माइनस ए माइनस 40 प्लस 25 बराबर 0। ये 25 और 10 हो जाएगा 35, माइनस ए माइनस 5 इक्वल टू 0, या माइनस ए इक्वल टू 5, या ए इक्वल टू -5। तो इन दिस वे हम लोग पाते हैं कि ए और के दोनों के ही वैल्यूज मिल जाते हैं। तो यही हमारा जो रिक्वायर्ड जो आंसर था वो इसी प्रकार लाया जाता है। इसमें थोड़ी सी सावधानी पूर्वक बच्चों को इस क्वेश्चन का प्रैक्टिस करना चाहिए, क्योंकि और क्वेश्चन का अलावा थोड़ा सा ये टफ है।
तो anyway, I am sure that now you all have become able to solve these questions of exercise 2.4 optional, और इसी के साथ ही हम अगले एक्सरसाइज के प्रश्नों के साथ आपके सामने होंगे। आप अभ्यास करते रहिए। बेस्ट ऑफ लक।